Hello students, welcome to my YouTube channel. I Verma sir welcome you all for a lecture series on solid mechanics. Students, today before going in detail for solid mechanics, first in one or two lecture we will discuss on the basics of engineering mechanics. So there are basically two topics which are very important. So that are resolution of forces, and second point is you must know how to calculate the reactions. So that we are going to see in today's lecture. So today we will going to see the reaction calculation on point loads. So basically students, there are various types of loads and there are different methods to calculate the reactions also. So first of all, we will start with a types of load. The very first type of the load is point or concentrated load. The load acts at a point on the beam. This point load is applied through a knife edge. So इसका क्या मतलब है दोस्तों कि जनरली मुझे पता है कि लोड कहाँ पे एक्ट होगा, तो बीम पे एक्ट होगा. तो लेट अस से दिस इज माय बीम and point load means or concentrated load means it is acting at a point. एक point पे act होगा. So अगर if I want a load at this point, so this is my point load, this is my again a point load. So point or concentrated load is acting at a point. So this is the first type of point load, or this is the first type of load which you should know. Now the second type of point load is, or second type of load is uniformly distributed load. That is nothing but UDL. The load is evenly distributed over a part of the entire length of the beam. The total UDL is assumed to act as a center of gravity of the load, and the unit of UDL is Newton per meter. So basically the unit of point load is Newton, kilonewton, but the unit of UDL is Newton per meter because it acts throughout the length. So UDL क्या होता है फ्रेंड्स? तो UDL में हम लोगों को सबसे पहले देखना होगा. So this is nothing but your UDL. ये देखिए B में दिस इज द सिंबल ऑफ UDL. तो एक UDL ये है. दूसरा UDL को कभी कभी इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. दिस इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ UDL. तो UDL में क्या होगा, जो लोड्स होंगे वो थ्रू आउट द लेंथ होंगे एंड इट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. देखो सभी तरफ हाइट सेम है. सो इसका मीनिंग क्या है, अगर इस पॉइंट पे 6 न्यूटन पर मीटर है तो यहाँ पे भी 6 न्यूटन पर मीटर ही रहेगा. तो थ्रू आउट द लेंथ अगर इंटेंसिटी अगर सेम है, सो देन दैट टाइप ऑफ लोड इज नथिंग बट योर UDL लोड. द थर्ड टाइप ऑफ द लोड इज यूनिफॉर्मली varying load, UVL. The load whose intensity varies linearly along the length of the beam over which it is applied. So this type of beam is nothing but, or these type of loads on the beam is nothing but your UVL. So let us say this is my beam. So this is an example of UVL. You see कि हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, यहाँ से लोड बढ़ते जा रहा है. सो UDL में लोड कांस्टेंट होता है, थ्रू आउट कांस्टेंट होगा. और एक ये UVL है, तो UVL में ग्रेजुअली लोड बढ़ेगा. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. सेकंड एक और है. कभी कभी आप लोगों को, हमेशा आप लोगों को ऐसा लगता है कि एक जैसा ही UVL होगा, ऐसा नहीं है. UVL सेंटर से भी स्टार्ट हो सकता है. ये देखिए, या बीच में से कहीं से भी स्टार्ट होगा.
या फिर यूवीएल इस प्रकार का भी होगा कि यहाँ पे कुछ है और यहाँ से ग्रेजुअली देखिए इंक्रीज होगा। सो दिस इज ऑल्सो यूवीएल। तो यूवीएल में लोड लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कैसे भी इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। तो यूवीएल यहाँ से भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि लेफ्ट से ही अगर होगा, तो ऐसा नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो यूवीएल। सो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। सो दीज थ्री आर द टाइप ऑफ लोड्स। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ बीम एंड सपोर्ट भी देख लेते हैं। तो बेसिकली द फर्स्ट टाइप ऑफ द बीम इज सिंपली सपोर्टेड। तो सिंपली सपोर्टेड बीम का मीनिंग होता है द बीम इज मेड टू फ्रीली रेस्ट ऑन सपोर्ट विच मे बी रोलर और हिंज। सो उसके पहले टाइप ऑफ सपोर्ट बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में, पहले हम लोग बीम देख लेते हैं। तो जहां पर कॉर्नर्स में सपोर्ट अगर दिया होगा तो इसे हम लोग कहेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है। सो कॉर्नर्स पे लोड कंपलसरी है, सपोर्ट कंपलसरी है, दैट इज नथिंग बट योर सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकेंड अगर आप लोग टाइप पे जाओगे तो सेकेंड टाइप इज नथिंग बट योर कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, एक साइड से देखो फिक्स है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम अगर ये मेरा बीम है तो कंपलसरी मुझे दोनों साइड से सपोर्ट होना चाहिए। कैंटिलीवर बीम आप लोग बोलते हो तो ये कैंटिलीवर बीम हो गया, देखो एक साइड से फिक्स है। या फिर कैंटिलीवर बीम का ये भी एक एग्जांपल है, दिस इज ऑल्सो कैंटिलीवर बीम, एक साइड से फिक्स चाहिए मुझे। तो कैंटिलीवर बीम का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। तो बालकनी इज द बेस्ट एग्जांपल, आप लोगों ने देखा होगा। तो जो थिएटर्स का बालकनी होता है वो एक साइड से फिक्स होता है, एक साइड ओपन होता है। सो ये एंड फिक्स होगा और फिर इस प्रकार से आपका बालकनी रहेगा। सो दिस इज अ कैंटिलीवर बीम। थर्ड टाइप ऑफ बीम है हमारा ओवरहैंग बीम। तो सिंपली सपोर्टेड और ओवरहैंग में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे भी जो सपोर्ट्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, अदर देन कॉर्नर्स रहेंगे। तो बेसिकली वी नो डैट ये दो कॉर्नर्स है, लेफ्ट और राइट एंड्स है हमारे। तो कोई भी एक साइड अगर हैंग हो गया, ये देखिए इस साइड, ये साइड अभी हैंग है, सो इट्स अ ओवरहैंग बीम। दूसरा आपको फिर से ऐसा कंपल्शन नहीं है कि लेफ्ट ही ये चाहिए, दिस इज ऑल्सो ओवरहैंग बीम। ये देखो ये वाला साइड ओवरहैंग हो गया है, हैंग हो चुका है। सो ओवरहैंग में ये हो गया। अब ये जो मैंने डायग्राम दिखाया देखो दोनों साइड से बीम हैंग्ड है, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ओवरहैंग बीम। सो ओवरहैंग बीम का अगर आप लोग डेफिनेशन देखेंगे तो ओवरहैंगिंग बीम हैज one or both side extended over the support. The end position or position extend in the form of cantilever beyond the support. तो आप लोगों को एक्स्ट्रा जो पार्ट हैंग किया होगा उसे हम लोग ओवरहैंग बोल सकते हैं। लेकिन कैंटिलीवर को आप लोग ओवरहैंग मत बोलिए, इट इज़ हैंग्ड, बट कैंटिलीवर में एक ही साइड में सपोर्ट होता है, बट ओवरहैंग में टोटल दो सपोर्ट्स होंगे। सो दिस इज अ न्यू थिंग। नेक्स्ट हमारा एक और टाइप का बीम है विच इज नथिंग बट अदर्स बीम के कैटेगरी में कंटिन्यूस बीम आ जाता है, फिक्स बीम आ जाता है, प्रॉप्ड बीम आ जाता है। तो कंटिन्यूस बीम मतलब दो से ज़्यादा सपोर्ट्स। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो ये दो से ज़्यादा सपोर्ट्स हो गए, एक दो तीन चार सपोर्ट्स हो गए। सो इट्स अ कंटिन्यूस बीम, कंटिन्यूसली आपका लोड अटैच रहेगा, सपोर्ट अटैच रहेंगे। नेक्स्ट इज द फिक्स्ड बीम। तो फिक्स बीम में देखिए क्या हो गया, फिक्स बीम में आपका ये ऐसे दोनों साइड आपका फिक्स हो गया। तो कैंटिलीवर का जो एक साइड में सपोर्ट होता है यहाँ पे दोनों साइड हो जाएंगे, तो इट्स अ फिक्स बीम। थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ अदर बीम्स में आता है प्रॉप्ड बीम। तो प्रॉप्ड बीम को मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू बीम्स। सो यहाँ पे देखो कैंटिलीवर प्लस सिंपली सपोर्टेड एक साइड से ऐड कर दिया है आपने, सो इट इज़ नथिंग बट योर प्रॉप्ड बीम। तो ये कुछ टाइप ऑफ बीम्स हम लोगों ने देखे। अब नेक्स्ट उसी में हमारा टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स आ जाएंगे। तो रोलर सपोर्ट्स पहला सपोर्ट है,
तो रोलर सपोर्ट कैसे दिखता है, तो ये हमारा हिंज सपोर्ट है और ये हमारा रोलर सपोर्ट है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, दिस इज माय रोलर सपोर्ट और ये जो है वो दिस इज अ हिंज सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट में क्या होगा, एक ही रिएक्शन होता है रोलर में, और वो भी रिएक्शन कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये देखिए इस सरफेस पे रोलर रखा हुआ है, इसीलिए उसको नॉर्मल हम लोगों का रिएक्शन आ गया। यहाँ पर देखिए ये सरफेस पे रोलर मूव होने वाला है, इसीलिए उससे परपेंडिकुलर इज माय रिएक्शन। तो रोलर में एक ही रिएक्शन होता है एंड विच इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर और नॉर्मल रिएक्शन विच इज अ परपेंडिकुलर टू योर सरफेस, जिसपे वो तुम्हारा रोलर जो है वो मूव होगा। सो ये रोलर सपोर्ट हो गया। नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ सपोर्ट इज हिंज्ड और पिन्ड सपोर्ट। तो पिन सपोर्ट में मैंने आप लोगों को अभी बना के दिखाया था कि दिस इज नथिंग बट योर पिन सपोर्ट। तो पिन सपोर्ट में बेसिकली देयर आर टू रिएक्शंस, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो ऐसे आपके दो रिएक्शंस और अननोन रहेंगे, पिन जॉइंट में या फिर हिंज्ड जॉइंट में। तो एक जस्ट एग्जांपल में देखिए बताता हूँ। बेसिकली देखो हमारे तीन प्रकार के मोशन हम लोग कंसिडर करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मींस एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में और तीसरा रोटेशन। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई भी रहे। वैसे हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट राइट कुछ भी हो सकता है, तो दैट बिकम वन। वैसे ही वर्टिकल में ऊपर नीचे, दैट बिकम वन। तो ये दो हो गए, और तीसरा मूवमेंट, मूवमेंट क्लॉकवाइज भी हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो अब हिंज में देखो, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ डोर, दरवाजे का एक बार एग्जांपल ले लो। तो दरवाजे में हिंज जॉइंट होता है। अब वो हिंज क्या करता है, हिंज ना ही वो दरवाजे को हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हो आप, हिंज जॉइंट रहेगा तो, ना ही आप वर्टिकली मूव कर सकते हो। तो आपका दरवाजा ऐसे ऐसे मूव हो सकता है क्या, नहीं। आपका दरवाजा ऐसे ऐसे मूव हो सकता है क्या, नहीं। तो आपका दरवाजा सिर्फ रोटेट हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर दो रिएक्शंस हैं। तो बेसिकली हिंज जॉइंट पे कितने रिएक्शंस रहेंगे, हिंज जॉइंट में देयर आर ओनली टू रिएक्शंस, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। बेसिकली तीन मोशंस होते हैं। ठीक है, रोलर में देखो, रोलर में कितना मोशन रहेगा, बाय डिफॉल्ट तो तीन मोशन होना चाहिए। अब जो मोशन पॉसिबल नहीं हो रहा है, दैट बिकम द रिएक्शन, बिकॉज रिएक्शन क्या होता है, अपोजिट फोर्स, अपोजिट इमेजिनरी फोर्स। तो वही चीज को आप लोग रोलर क्या हो सकता है, अगर मैंने ये रोलर ले लिया तो रोलर क्या करेगा, इधर उधर मूव हो सकता है, करेक्ट। अब मुझे बताइए रोलर वर्टिकल मूव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता रोलर मूव। रोलर रोटेट कर सकता है क्या, हाँ कर सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया तीन मोशंस होते हैं, हॉरिजॉन्टल हो सकता है तो रिएक्शन नहीं आएगा उसका, वर्टिकली मूव हो सकता है क्या रोलर, नहीं हो सकता, इसीलिए वर्टिकल रिएक्शन आता है रोलर में। गोल घूम सकता है क्या अपने एक्सिस पे, यस रोलर घूम सकता है। तो रोलर ये देखिए मैं बता दूँ कैसे घूमेगा, जस्ट ये ऐसे है, ये रोलर ये ऐसे ऐसे हो सकता है, तो ये ऐसे ऐसे मोशन दे सकता है ये रोलर, इस पॉइंट पे ये फिक्स होता है ये पॉइंट। सो यहाँ पे भी मूवमेंट नहीं रहेगा तो ये मूव हो सकता है। सो दिस इज नथिंग बट योर सेकेंड टाइप ऑफ सपोर्ट एंड बीम्स। तो ये एक आप लोगों का सेकेंड टाइप हो गया सपोर्ट का। अब थर्ड टाइप जो होगा, सो दैट इज नथिंग बट योर फिक्स्ड। तो फिक्स्ड में जो कैंटिलीवर में होता है वो एक साइड से देखो। अब जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अगेन बालकनी। बालकनी का जो एंड दीवार में अटैच होता है, वेदर हॉरिजॉन्टली मूव हो सकता है क्या, ये पोर्शन मूव होगा क्या हॉरिजॉन्टली, ये पोर्शन वर्टिकली मूव होगा क्या, ये पोर्शन कपल में घूमेगा क्या, नहीं। यहाँ तीनों मोशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो जो मोशन रिस्ट्रिक्ट होता है
वो रिएक्शन हो जाता है। इसीलिए आप देखिए देयर आर 3 रिएक्शंस, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक मोमेंट, टोटल 3 रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में देना है। दूसरा, कुछ बच्चों को डाउट्स इस प्रकार से होता है कि सर रिएक्शन हमेशा ऊपर ही क्यों होता है, नीचे क्यों नहीं होता? तो बेसिकली व्हाट इज रिएक्शन? रिएक्शन इज नथिंग बट अपोजिट एज अ सपोर्ट। तो अगर मेरा ऊपर से लोड आएगा तो बाय डिफॉल्ट रिएक्शन कैसे होना चाहिए? नीचे से ही होना चाहिए। यस और नो? तो कुछ केसेस में रिएक्शन हम लोग कैलकुलेशन में देखते हैं नेगेटिव आ जाता है, तो डोंट वरी अबाउट वैल्यूज नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, हम लोग उसको देख लेंगे ठीक से। लेकिन अभी तो हाल फिलहाल में हम लोग रिएक्शन जो वर्टिकल है उसको ऊपर ही रखेंगे। वैसे ही हॉरिजॉन्टल रिएक्शन में सर ऐसे होगा क्या या फिर ऐसे लेना चाहिए? तो कोई भी ले लो, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। सेम देखो, मैंने यहाँ पर आप लोग देखोगे कपल, तो सर ये यहाँ पर ऐसा ले लिया लेकिन आपने तो अभी ऐसे बताया, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी प्रकार से ले लीजिए, कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है, अगर इसको भी थोड़ा सा अगर आप समझना चाहते हो तो मैंने जैसे पॉइंट लोड का बताया, तो जैसे उसी प्रकार से देखो मैं आपको इसका बताता हूँ। मेरा अगर ऐसा लोड है, क्या होगा? ये बीम ऐसे डिफ्लेक्ट करने वाला है कि नहीं? तो मेरा मोमेंट ऐसे जनरेट होगा। तो डेफिनेटली ये फोर्स की 20 किलो न्यूटन फोर्स की वजह से ये अगर क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो मेरा अननोन मोमेंट रहेगा, रिएक्शन मोमेंट रहेगा, वो कैसा रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा। अपोजिट होता है हमेशा रिएक्शन, तो इसीलिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया था। ठीक है, तो आगे जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब देखेंगे कि कैसे हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस करते हैं या फिर बीम्स में हम लोग कैसे रिएक्शन निकालते हैं, तो उस समय मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई हैं। आज हमने टाइप्स ऑफ लोड देखा है, टाइप्स ऑफ बीम देखा है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट देखा है। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिए और अच्छी तरीके से इसको ध्यान में रख के अपने नोटबुक में ये सब ड्रॉ कर लीजिए। और फिर जब हम सेकंड लेक्चर में करेंगे, आगे के लेक्चर में, तब मैं आप लोगों को बाकी की चीज़ें भी बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।